students, I am Dr. Nilesh Sawan and I am back today with the second lesson of 11th biology, that is the biological classification. So in this first lecture we will see what all the type of classifications were given, and today the classification which we use, that is the 5 kingdom Whittaker system, we will be looking into that. So we'll just look in the history of how this classification was evolved, how it came into place, and who all gave this classification. Let's start. Now, as you all know, in the previous first lesson video we have already seen that classification is an important tool to because with the help of classification, on the basis of similarities and dissimilarities, we will group the organisms so that it becomes easy for us to understand them, to learn about their characteristics and all that stuff. So classification helps us, it makes easy for us rather to study such a vast diversity of organisms. ठीक है? So सबसे मतलब this classification ऐसा नहीं है कि साइंटिस्टों ने शुरू किया. इनिशियली जो ओल्ड मतलब सिविलाइजेशंस में थे, तब लोगों ने भी एनिमल्स या प्लांट्स को क्लासिफाई करना शुरू किया था बेस्ड ऑन द यूजेस सबसे पहले. बट उसमें कोई साइंटिफिक अप्रोच नहीं था, यूजेस के मुताबिक. दीज आर डेयरी एनिमल्स, दीज आर व्हाट यू कैन से फार्म एनिमल्स इन दैट सेंस. सो दे यूज्ड टू क्लासिफाई देम इन दैट वे. बट द फर्स्ट ऑथेंटिक व्हिच वी कैन से अ साइंटिफिक बेस्ड क्लासिफिकेशन वाज फर्स्ट गिवन बाय Aristotle. So Aristotle was the first one who started the what you can say the classification parts on the basis of scientific basis. A little bit you can say, because even in his time the technicality was missing, but nevertheless on the basis of the morphological characters he started classifying those organisms. Now the classification which he made was, जो books में भी दिया है तुम्हें NCERTs के, प्लांट्स का उसने जब पहले क्लासिफिकेशन किया था, that was based on the height of the plant plus the woody nature of the stem of that plants. So trees, shrubs and herbs, this was the initial classification. Plants were initially classified into these 3 categories, that is trees, shrubs and herbs. Trees obviously tall होते हैं, woody होते हैं, branched होते हैं severely. Shrubs थोड़े, अब इन तीनों में बोलो तो मीडियम हाइट के मिलेंगे. Shrubs, they are not as tall as trees, but they are not also as short as herbs. So these were shrubs. And finally the small ones means the in the sense of height of the plant, so they were known as herbs. Plus these perish, means these are generally biennial or annual plants which will, जैसे example tulsi है, tulsi it's not a perennial type of plant, so it will grow for few years and then it will die off. So these were categorized under herbs. So trees, shrubs and herbs, this was the initial classification which was given by Aristotle. Apart from that, he also classified animals also based on the pigments in the blood present. So he called it as anemic or anemic. Okay, anemic and anemic. E means blood, red blood animals, मतलब जिन animals में blood लाल कलर का होता है वो anemic. And A means absent, जिनमें ये blood pigments नहीं होते, या जिसे अपन respiratory pigments बोलते हैं, which helps to bind with the oxygen, you know that. So इन्हें हम कहते हैं anemic, so colorless blood ऐसे. So initially he classified animals into these 2 categories. One more classification which he made was on the basis of habitat. Air dwellers, land dwellers and water dwellers, means the animal which are found aerial, means birds and all. Land dwellers, mammals बोल सकते हो, बहुत सारे हैं, reptiles हैं. And air dwellers, so water dwellers में बोलो तो fishes वगैरह आते हैं, air में birds and land में तुम्हें बहुत सारे animals मिल जाएंगे, reptiles, mammals वगैरह. वो एक और classification Aristotle ने दिया हुआ था, तो बुक में वो मेंशन नहीं, बुक में यही 2 है, so I have only mentioned these 2. Next, obviously जैसे जैसे साइंटिस्ट आगे मतलब जो नेक्स्ट साइंटिस्ट आते गए, थोड़ा सा उनमें टेक्निकलिटी बढ़ता गया. सो द नेक्स्ट सिस्टम, दैट वाज 2 kingdom system of classification which was given by Carlos Linnaeus.
We have already studied this in the first chapter. He was the one who introduced the taxonomy term, where पूरा how to classify, उस classification में क्या क्या आता है, taxonomy में क्या आता है, वो कार्लस लिनायस ने दिया था. सिस्टमैटिक्स में भी उसने काम किया था, जिसमें ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने के साथ साथ उनके इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पे बेस्ड क्लासिफिकेशन किया गया था. Now initially Carlos Linnaeus was the one who gave this two kingdom system. Now two kingdom system में सिंपल था, प्लांटे एंड एनिमेलिया, यही दो किंगडम्स उसने कंसीडर किए थे. Now on what criteria? He only took into consideration only the morphological criteria. Obviously उस वक्त इतना माइक्रोस्कोप्स वगैरह नहीं थे कि थोड़ा डिटेल में घुसे, बट ओनली मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, कि सेल वॉल अगर प्रेजेंट है तो उसको प्लांटे में डालो, एंड विच वर नॉन लोकोमोशन, मींस जो लोग लोकोमोट नहीं करते, नॉन लोकोमोटिंग ऑर्गेनिजम्स को प्लांटे में डाल दो. एंड एनिमेलिया में जिन्हें सेल वॉल नहीं होता एंड जो मूव कर सकते हैं. दिस वाज द बेसिक फंडा व्हिच ही यूज्ड इन हिज क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांटे एंड एनिमेलिया. पर इसी चक्कर में अगर देखोगे, इट वाज नॉट अ वेरी ब्रॉड क्लासिफिकेशन, बिकॉज बहुत सारी प्रॉब्लम्स इस क्लासिफिकेशन में थी. क्या क्या थी? तो अगर प्लांटे में देखोगे, मतलब दोनों में देखोगे, सो इट वाज नॉट बेस्ड की यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, वो उसने कंसिडरेशन में नहीं लिया, मतलब जो कि लिया जा सकता था उस वक्त भी. सो यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर ऐसा कोई क्लासिफिकेशन नहीं था. देन बेस्ड ऑन द सेल्स, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक जो सेल टाइप्स है, वो भी उसने कुछ कंसिडरेशन में नहीं लिया. अगेन मोड ऑफ न्यूट्रिशन वगैरह नहीं लिया था. सो ये सब चीजें अगर हम देखें तो ये कुछ ड्रॉबैक्स थे ऑफ द टू किंगडम सिस्टम. इसी रीजन से अगर हम देखें, प्लांटे में फंगस, देन बैक्टीरियाज, साइनोबैक्टीरियाज, इन्हें भी इंक्लूड किया गया था. ठीक है, मॉसेस तो है, उनको भी प्लांटे में उसने इंक्लूड किया था. देन कुछ एनिमल्स में भी टिपिकली स्पीकिंग से यूग्लिना, देन अमीबा, पैरामेशिया, ये कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो टेक्निकली एनिमेलिया को बिलोंग नहीं करते, बट स्टिल उसको वहां पे रखा हुआ था. सो जो भी हो, बट इनिशियली ये टू किंगडम सिस्टम वाज गिवन बाय कार्लस लिनायस. जो प्रॉब्लम्स थे वो मैंने तुम्हें बताया, इसलिए साइंटिस्टों को लगा नहीं, इसमें और क्राइटेरियाज लेने चाहिए, जैसे सेल टाइप, जैसे मैंने बताया, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ये सब चीजों का इंक्लूजन होना चाहिए था, ऐसा ऑब्वियसली लोगों का मानना था. सो ऑन दैट नोट, मींस आफ्टर द टू किंगडम क्लासिफिकेशन, दूसरे साइंटिस्टों ने और दूसरे कैरेक्टर्स, फिजियोलॉजिकल रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स, फिर मैंने बताया मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सेल टाइप, ये सब हैबिटेट, इन्हें कंसिडर करने की कोशिश की. एंड उसी चक्कर में आफ्टर टू किंगडम सिस्टम आया था थ्री किंगडम सिस्टम. तो जो प्रॉब्लमेटिक ऑर्गेनिजम्स थे, जो ना एंटायरली प्लांट में हम रख सकते हैं, ना एंटायरली एनिमल्स में, हैकल ने ये थ्री किंगडम सिस्टम दिया. उसने एक अलग कैटेगरी किंगडम उसमें डाल दिया, दैट वाज प्रोटिस्टा. एंड ये जो सब डाउटफुल ऑर्गेनिजम्स थे, मतलब जो ट्रू सेंस में प्लांट नहीं थे, बट उन्हें प्लांटे में रखा गया था, जैसे फंगस हो गया, या दूसरे भी जैसे मैंने बताया काइलाडोमोनास, स्पाइरोगायरा, इन्हें अलगे में रखा था इनिशियली. सो इनको प्रोटिस्टा में डाल दिया गया. फिर यहाँ के पैरामेशिया, यूग्लिना, देन अमीबा, जो एनिमल्स में रखे थे, उनको प्रोटिस्टा में शिफ्ट कर दिया गया. एंड तब ये थ्री किंगडम सिस्टम हैकल ने ये प्रपोज किया. अगेन दिस वाज नॉट फाउंड टू बी इनफ, सो देयर केम फोर किंगडम सिस्टम, जो पोपलैंड ने दिया था. इसमें उसने मोनेरा सेपरेट किया, तो सारे बैक्टीरिया को उधर सेपरेट कर दिया गया था. सो ये पोपलैंड का फोर किंगडम सिस्टम टेक्स्ट बुक में नहीं है, बट जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए मैंने तुम्हें ये दिया है. तो यहाँ पे मोनेरा किंगडम एक्स्ट्रा इंक्लूड होता है, वो एमसीक्यूज वगैरह के लिए याद रख सकते हैं. थ्री किंगडम सिस्टम हैकल ने दिया था, जिसने प्रोटिस्टा ये टर्म इंट्रोड्यूस किया था. नेक्स्ट आता है सिक्स किंगडम. अब वैसे तो फाइव किंगडम सिस्टम ही आता है नेक्स्ट, पर वो हमें डिटेल में देखना है, इसलिए मैंने यहाँ पे लास्ट में रखा है. नाउ सिक्स किंगडम सिस्टम वाज गिवन बाय कार्ल वूस. ये बुक में मेंशन है, कार्ल वूस का नाम नहीं है, बट सिक्स किंगडम सिस्टम के बारे में मेंशन है बुक में. एक्चुअली सिक्स किंगडम भी कैसे, इट इज एक्चुअली डिवाइडेड इनटू बेसिक थ्री डोमेन्स. इसमें कार्ल वूस ने क्या किया, जो मोनेरा था, मोनेरा जो किंगडम है मोनेरा, उसको उसने दो कैटेगरीज, दो डोमेन्स में किया, आर्के बैक्टीरियाज एंड यू बैक्टीरियाज. ये एक फर्क है. सो ये डोमेन है. तीसरा डोमेन था यूकैरिया.
जिसमें सारे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है, जिसमें सारे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स थे। एंड यूकैरियोटिक में ये चार आते हैं, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटेन, मतलब एक दो और ये चार, ऐसे पकड़कर 6 किंगडम सिस्टम उसने दिया था। दैट वाज गिवन बाय कार्लस। बस इतना ही याद रखो इसके बारे में, बुक में इतना ही दिया है, हमें वो डिटेल में है नहीं, सो डोंट गो बियॉन्ड दिस। सो एंट्रेंस के लिए अगर मैं बात करूं, ये क्लासिफिकेशन सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। एरिस्टोटल ने कौन सा दिया? प्लांट्स के केस में ट्री, श्रब्स, हर्ब्स। एनिमल्स में ब्लड वाले, विदाउट ब्लड या कलरलेस ब्लड वाले, वो एक था। तो एनेमिक एंड एनेमिक, ये उसने क्लासिफिकेशन दिया था। उसके बाद था टू किंगडम सिस्टम, जो कि कार्लस लिनास ने दिया था, व्हिच वाज बेस्ड, दो ही थे, प्लांटे एंड एनिमेलिया, व्हिच वाज बेस्ड ऑन जस्ट मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, दिस वर दोस कैरेक्टर्स। बट इसके बावजूद इसमें कुछ ड्रॉबैक्स थे, जैसे मैंने बताए थे कि कुछ जन जो प्लांटे को एक्चुअली ट्रू सेंस में बिलोंग नहीं करते, वो भी उसने उसमें डाला था। मतलब ऑटोट्रॉफ, हेटेरोट्रॉफ, ऐसा कोई पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन उसने लिया नहीं था, सिर्फ सेल वॉल। जैसे हमें पता है फंगस को भी सेल वॉल होता है, प्लांट को भी होता है, तो फिर उसने फंगस को भी प्लांटे में डाल दिया, जबकि हम जानते हैं प्लांटे जनरली वो कैटेगरी जो ऑटोट्रॉफिक होते हैं। तो ये सब उसने कंसिडरेशन में नहीं लिया। यूनिसेल्युलर, मल्टीसेल्युलर, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक, हेटेरोट्रॉफिक, ऐसा कुछ कंसिडरेशन कार्लस लिनास ने तो इनिशियली नहीं किया। इसलिए दिस वाज नॉट अ फुल फ्लेज और अ वेरी गुड काइंड ऑफ क्लासिफिकेशन, बिकॉज स्टिल इट हैड सम डाउट्स, ठीक है, कुछ ऑर्गेनिजम्स इनकरेक्टली प्लेस्ड थे। उसके बाद थॉट प्रोसेस बढ़ा साइंटिस्टों का, तो दे स्टार्टेड इंट्रोड्यूसिंग मोर कैरेक्टर्स सो एज टू क्लासिफाई दोज ऑर्गेनिजम्स। तो उसमें सेल टाइप आ गया, देन मोड ऑफ न्यूट्रिशन आ गया, हैबिटेट आ गया, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन आ गया, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन आ गया। तो ये सब इंक्लूड आहिस्ता आहिस्ता होते गए, एंड तुम्हें ये सब्सिक्वेंट क्लासिफिकेशन में देखने को मिलता है। तो फिर उसके बाद आया थ्री किंगडम सिस्टम, व्हिच वाज गिवन बाय हैकेल, प्रोटिस्टा, प्लांटे, एनिमेलिया। कोपलैंड ने 4 किंगडम सिस्टम दिया, जिसमें मोनेरा ऐड कर दो, ये तीन तो सेम है, मोनेरा ऐड कर दो। कार्ल वूज ने 3 डोमेन सिस्टम, 3 डोमेन सिस्टम या 6 किंगडम सिस्टम उसने इंट्रोड्यूस किया। 3 डोमेन्स मतलब ये, 6 किंगडम मतलब 1 2, and these 4 were considered as kingdoms. So this was given by Carl Woese. बट फिर इन सभी क्लासिफिकेशन में जो सबसे लेटेस्ट एंड जो सबसे भरोसेमंद एंड जो बोल सकते हैं बेटर तरीके से क्लासिफाइड है, वो था विटेकर का, आर.एच. विटेकर का 5 किंगडम सिस्टम। 1969 में उन्होंने ये दिया था, एंड ये सबसे बेस्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम माना जाता है, ठीक है। तो 5 उन्होंने कंसिडर किए थे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटे, एनिमेलिया, ठीक है। सो दीज वर द 5 किंगडम्स दैट वाज कंसिडर्ड बाय आर.एच. विटेकर, और जिसमें ये क्राइटेरियाज लिए गए थे, सेल टाइप, सेल वॉल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन। देखते हैं तो मोनेरा में हम सब में एक एक में देखते हैं सेल टाइप क्या है। तो ये एंट्रेंस के लिए याद रखो, ये टेबल बुक में भी दिया है, एनसीईआरटी बुक में, तो प्लीज लुक इनटू दैट। सो इसमें क्या है देखो, सेल टाइप सबको पता है मोनेरा में क्या होता है, प्रोकैरियोटिक सेल्स। तो सेल टाइप कैसा होता है, प्रोकैरियोटिक सेल। सारे ऑर्गेनिजम्स इन मोनेरा ये सब प्रोकैरियोटिक है, पर प्रोटिस्टा ऑनवर्ड्स सभी यूकैरियोटिक सेल्स वाले ऑर्गेनिजम्स है। सब में यूकैरियोटिक सेल होता है, बाकी 4 किंगडम्स में, मोनेरास में प्रोकैरियोटिक। देन सेल वॉल के टर्म्स में अगर हम बात करें तो हमको पता है पॉलीसैकेराइड प्लस अमीनो एसिड, सबको पता है इट इज पेप्टिडोग्लाइकेन, ठीक है, पेप्टिडोग्लाइकेन, अल्फा अमीनो एसिड्स लिख देता हूं, पॉलीसैकेराइड्स एंड अल्फा अमीनो एसिड्स। सो मिक्सचर ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन, पेप्टिडोग्लाइकेन, म्यूरिन हमने पढ़ा है, म्यूरिक एसिड वो था। प्रोटिस्टा में भी सेल वॉल होता है बट फिक्स नहीं होता है, मतलब केमिकल कंपोजिशन किसी किसी में सेल्यूलोज, चिटिन, मतलब अलग अलग केमिकल कंपोजिशन होता है, बट सेल वॉल प्रेजेंट जरूर है। यहाँ पे भी प्रेजेंट है, बट यहाँ पे भी सेल वॉल प्रेजेंट है, अलग अलग कंपोजिशन देखने को मिलता है। हाँ, फंगस का जो है वो एक तो फंगल सेल्यूलोज होगा या तो चिटिन, ऑब्वियसली इट विल हैव चिटिन या तो फंगल सेल्यूलोज, ये
जनरली तुम्हें केमिकल मिलता है इन दी सेल वॉल। यहाँ पे तो एक्सक्लूसिवली सेल्यूलोज मिलेगा, ठीक है, एंड जबकि एनिमेलिया में सेल वॉल होता ही नहीं है, ठीक है। सो पहले चार जो है इन सब में सेल वॉल होता है, बट फर्क है कि उनका केमिकल कंपोजिशन अलग है। ये पेप्टिडोग्लाइकेन, पॉलीसैकेराइड प्लस अमीनो एसिड्स दिया हुआ है, इनमें प्रेजेंट होता है, कंपोजिशन वेरी करता है क्योंकि कुछ प्लांट लाइक प्रोटिस्ट है, कुछ एनिमल लाइक, तो उनमें सेल वॉल होता नहीं है, तो कुछ कुछ में प्रेजेंट है, कुछ कुछ में नहीं। सभी प्रोटिस्टास में नहीं होता, सम आर एक्सेप्शन। जो एनिमल लाइक प्रोटिस्ट है उसमें सेल वॉल नहीं मिलेगा। प्लांट लाइक और फंगस लाइक जो है उसमें तुम्हें सेल वॉल प्रेजेंट मिलेगा। सो यहाँ पे प्रेजेंट भी नहीं भी दोनों बोल सकते हो। फंगस की बात करते हो तो चिटिन एंड फंगल सेल्यूलोज जनरली एक कंपोजिशन होता है। प्लांट है तो सेल्यूलोज एंड पेक्टिन एज वी ऑल नो, एंड एनिमल्स में सेल वॉल होता ही नहीं है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, अब सबको यहाँ से ही आंसर मिल जाएगा। प्रोकैरियोटिक सेल को तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता ही नहीं, सो द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट, ठीक है। सो जो जेनेटिक मटेरियल है वो साइटोप्लाज्म में ही घूमता हुआ मिलेगा, जबकि सब में यूकैरियोटिक है तो कॉमन सेंस सब में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा। तो ये वाला पॉइंट तो इजी था। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ऑब्वियसली ये सेल्यूलर यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। मोनेरा के सभी मेंबर्स यूनिसेल्यूलर प्रोकैरियोट्स होते हैं। प्रोटिस्टा के भी यूकैरियोटिक और यूनिसेल्यूलर मिलेंगे। ये प्रोकैरियोटिक यूनिसेल्यूलर, प्रोटिस्टा वाले यूकैरियोटिक यूनिसेल्यूलर। सो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जनरली सेल्यूलर फॉर्म में मिलेंगे। ये मल्टीसेल्यूलर होते हैं, ठीक है। फंगस मल्टीसेल्यूलर होंगे, या तो कुछ कुछ टिश्यू लेवल भी, लूज टिश्यू इनमें मिलता है, ये जो उन्होंने दिया हुआ भी है, यू कैन राइट इट ओवर देयर। एंड ऑब्वियसली प्लांटे में तुम्हें टिश्यू मिलेगा, ऑर्गन मिलेगा, ऑर्गन सिस्टम्स तो नहीं है, बट इनमें टिश्यू मिलता है, ऑर्गन मिलता है एंड ऑर्गन सिस्टम भी मिलेगा। एनिमल्स में अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम्स, तो ऐसे सिस्टम्स भी मिलेंगे। प्लांट्स में ऑर्गन्स मिलते हैं, रूट, लीफ, स्टेम्स, ये उनके ऑर्गन्स है। टिश्यूज भी है, मेरिस्टेमेटिक वगैरह वगैरह अपने को पता है। सो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में ये सेल्यूलर है। एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन सबको पता है, मोनेरा में ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के साथ साथ हेट्रोट्रॉफिक, रादर मेजॉरिटी ऑफ द बैक्टीरियाज जो मोनेरा को बिलोंग करते हैं वो ज्यादातर हेट्रोट्रॉफ है। ऑटोट्रॉफ में सबको पता है दो आते हैं, फोटोसिंथेटिक एंड कीमो ऑटोट्रॉफ्स। फोटो ऑटोट्रॉफ्स, कीमो ऑटोट्रॉफ्स दोनों कैटेगरी मिलते हैं, एंड हेट्रोट्रॉफ्स भी तुम्हें मोनेरा में मिलते हैं। मेजॉरिटी डीकंपोजर्स कैटेगरी में आते हैं, सो दे आर हेट्रोट्रॉफ्स। प्रोटिस्ट अगेन दोनों मिक्स है, दे आर ऑटोट्रॉफ्स, सम ऑफ देम इवन सम आर हेट्रोट्रॉफ्स, सो यू गेट मिक्सचर। तो ऑटो में भी, ऑटोट्रॉफ्स में भी फोटो, कीमो थोड़ा बहुत मिल जाएगा। फंगस एक्सक्लूसिवली हेट्रोट्रॉफ्स, और हेट्रोट्रॉफ्स में सबको पता है दो आते हैं, सैप्रोफाइट्स जो डेड एंड डिकेइंग पे जिंदा रहेंगे, एंड पैरासाइट्स जो ऑब्वियसली लिविंग होस्ट होता है, उनको नुकसान पहुंचाएंगे, खुद का भला करेंगे। सो हेट्रोट्रॉफ कैटेगरी खास करके सैप्रोफाइट्स, पैरासाइटिक में मिलते हैं। प्लांट्स तो बताने की जरूरत ही नहीं, एक्सक्लूसिवली फोटो ऑटोट्रॉफ्स, ठीक है। एक्सक्लूसिवली प्लांट्स सब फोटो ऑटोट्रॉफ्स हैं। एंड ये अगेन एनिमल्स की अगर हम बात करें तो अगेन दीज आर हेट्रोट्रॉफ्स, मतलब अब इसमें भी कुछ सैप्रोफाइट्स, पैरासाइट्स, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी मिलता है, तो वो एक दिया है। सो होप सो सबको विटेकर ने ये जो 5 किंगडम सिस्टम का क्राइटेरिया लिया है वो सबको समझे। एक बार शॉर्ट रिकैप देखते हैं। 5 किंगडम सिस्टम आर.एच. विटेकर का, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटे, एनिमेलिया। कुछ कौन कौन से पॉइंट्स ऑफ कंसिडरेशन लिए? पहला सेल टाइप, प्रोकैरियोटिक मतलब जिसमें न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं होता, सब जानते हैं। यूकैरियोटिक जिसमें न्यूक्लियस वेल डिफाइंड होता है अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सो ये दो पॉइंट्स एक साथ याद रख सकते हो। प्रोकैरियोटिक सेल है इसलिए इसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं, ये सब यूकैरियोटिक है इसलिए सबको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। तो दो पॉइंट्स ऐसे ही लर्न। नेक्स्ट, सेल वॉल पे बेस्ड, पहले चारों किंगडम्स में सेल वॉल है, एनिमेलिया में नहीं होता है। तो ये पहली बात तो ये है। सबका सेल वॉल का केमिकल कंपोजिशन अलग है, जैसे इनका पेप्टिडोग्लाइकेन, म्यूरिक एसिड, इसमें ऑब्वियसली एनिमल लाइक प्रोटिस्ट में सेल वॉल नहीं होता।
प्लांट लाइक, फंगस लाइक में तुम्हें मिलेगा, केमिकल कंपोजिशन वेरी करेगा। फंगस जो है उसमें चिटिन या फंगल सेल्यूलोज मिलता है, बुक टेक्स्ट में आई थिंक तो सिर्फ चिटिन दिया है, तो प्लीज गो फॉर इट। बट आगे हम जो अभी हम पढ़ने वाले अगले लेक्चर्स में मोनेरा, फंगाई, प्रोटिस्टा, उसमें तुम्हें ये समझ में आएगा। प्लांटे में सेल्यूलोज यानी ये तो एब्सेंट होता है। नेक्स्ट बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, तो पहले दो मतलब मोनेरा आर प्रोकैरियोटिक सेल यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, प्रोटिस्टा आर यूकैरियोटिक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, बाकी सब मल्टीसेल्युलर है, ठीक है। मल्टीसेल्युलर प्लांट्स में तो टिश्यू ऑर्गन लेवल तक है, एनिमल्स में टिश्यूज भी है, ऑर्गन्स भी और ऑर्गन सिस्टम्स भी है। एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोनेरा दोनों मिलता है, ऑटोट्रॉफ हेटेरोट्रॉफ, प्रोटिस्टा भी ऑटोट्रॉफ हेटेरोट्रॉफ, फंगस सिर्फ हेटेरोट्रॉफ, प्लांटे सिर्फ ऑटोट्रॉफ एंड एनिमेलिया सिर्फ हेटेरोट्रॉफ। तो ये बेसिक डिफाइनिंग पॉइंट्स थे जो आर.एच. व्हिटेकर ने दिए थे। अब आर.एच. व्हिटेकर ने ये पॉइंट्स जब कंसीडर किए तो क्या मतलब काफी सारा प्रॉब्लम जो इधर थे वो सब बहुत सारे प्रॉब्लम्स निकल गए। अर्लियर क्लासिफिकेशंस के प्रॉब्लम क्या थे? देखो, अर्लियर क्लासिफिकेशन के प्रॉब्लम ये थे कि ऑब्वियसली प्लांटे में कौन कौन आते हैं, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, अलगे तो आते ही है, ठीक है। पर उसमें बैक्टीरियाज, साइनोबैक्टीरियाज, फंगसेस, इसको भी इंक्लूड किया गया था बाय कार्लस लिनायस। तो पहली बात इसको उसने सेपरेट किया, ठीक है। जो सिर्फ सेल वॉल था अब उसने सेल टाइप उसमें डाल दिया, सेल वॉल भी पॉइंट एक आ गया, बट केमिकल कंपोजिशन पे भी डिपेंड करता है, एंड न्यूक्लियर वैलेंस। तो सेल टाइप के हिसाब से अब क्या हो गया, बैक्टीरिया को सेपरेट कर दिया गया, प्रोकैरियोटिक, तो उससे मोनेरा किंगडम बनाया गया, ठीक है। सो उससे उन्हें मोनेरा किंगडम में डाला गया। देन ये जो काइलाडोमोनास, स्पाइरोगायरा एक्चुअली ने अलगे में रखा था, विच वाज इंक्लूडेड इन प्लांट्स इनिशियली, बट अब उन्हें अलगे से हटा दिया गया है, अब उन्हें प्रोटिस्टा में रखा है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस क्राइटेरिया नाउ दे आर शिफ्टेड इनटू प्रोटिस्टा। सिमिलरली पैरामीशिया, अमीबा, ये एनिमेलिया में रखे गए थे, अब इन्हें भी शिफ्ट कर दिया गया है इनटू द प्रोटिस्टा किंगडम। सो इस तरीके से काफी चीजों का सॉर्टिंग आउट हुआ। फिर वापस फंगस को जो प्लांटे में रखा था इस बेसिस पे कि सेल वॉल है, बट हमको पता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन के हिसाब से प्लांट्स एक्सक्लूसिवली ऑटोट्रॉफ्स एंड फंगस आर एक्सक्लूसिवली हेटेरोट्रॉफ्स, एंड ये देखते हुए इनको सेपरेट, एंड इवन सेल, हमने सेल वॉल है इस हिसाब से उसको प्लांटे में डाला था, बट द केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल आल्सो डिफर्स इन फंगस एंड प्लांट। सो इस रीजन से एक अलग ही किंगडम निकाला गया, दैट वाज फंगाई। सो इस तरीके से व्हिटेकर के 5 किंगडम सिस्टम ने जो पुराने किंगडम सिस्टम्स के कुछ ड्रॉबैक्स थे वो काफी हद तक हटा दिए, एंड ये अब एक थोड़ा बेटर क्लासिफिकेशन हमें लगता है जो हम पढ़ सकते हैं। ऑब्वियसली ये मैं नहीं बोलता कि इसमें कोई ड्रॉबैक्स नहीं है, 100% फुल प्रूफ ये है, आगे चलकर हो सकता है और भी क्लासिफिकेशन मतलब और डिटेल क्लासिफिकेशन हम शायद कर पाए, क्योंकि आज जैसे जैसे नए नए कैरेक्टर्स हम लोग कंसिडरेशन में लेते हैं, जैसे मोड ऑफ मतलब जनरली हम मॉर्फोलॉजी के साथ साथ फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स, रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स, और आज हमने इसमें एक और ऐड कर दिया है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स के बेसिस पे भी और इन्हें डिटेल में हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, जैसे हमने किया भी है। जैसे प्लांटे है तो अभी हम अगले लेसन में पढ़ेंगे वो, क्योंकि अगला लेसन अपना किंगडम प्लांटे ही है, तो प्लांटे में हमने पढ़ेंगे क्रिप्टोगैम्स, फनारोगैम्स। अब इसका मतलब यह है कि व्हेन यू राइट क्रिप्टोगैम्स फर्स्ट एंड फनारोगैम्स आफ्टरवर्ड्स, क्रिप्टोगैम्स वो है जो सबसे पहले इवॉल्व हुए, फिर फनारोगैम्स हुए, फिर क्रिप्टोज में हम लिखते हैं अलगे, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स। अब ये सीक्वेंस भी चेंज नहीं करना है, क्योंकि जब हम ऐसा लिख रहे हैं इसका मतलब सबसे पहले अलगे इवॉल्व हुए, अलगे से ब्रायोफाइट्स इवॉल्व हुए, ब्रायोफाइट से टेरिडोफाइट्स, फिर जिम्नोस्पर्म्स, फिर एंजियोस्पर्म्स। अब एंजियोस्पर्म्स में भी जब हम लिखते हैं डाइकॉट, मोनोकॉट, इसका मतलब पहले डाइकॉट प्लांट्स इवॉल्व हुए, बाद में मतलब आज की डेट में सबसे इवॉल्व प्लांट्स कौन से हैं? मोनोकॉट्स। सो इस तरीके से हमने जो क्लासिफिकेशन आगे किए इनके, अब ये तो किंगडम्स हो गए, इनको भी आगे हमने क्लासिफाई किया है। तो इस लेसन में हम लोग मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई ये डिटेल में देखने वाले हैं, एंड कुछ और ऑर्गेनिजम्स जिन्हें क्लासिफिकेशन में जगह नहीं मिली है,
तुम अगर इसमें देखोगे विटिकर सिस्टम का ड्रॉबैक है, वायरसेस, वायरॉइड्स, पायरियंस, ये जो डिजीज कॉजिंग पैथोजेंस है, इन्हें विटिकर सिस्टम में जगह नहीं है, कहीं पे भी उनका जिक्र नहीं है। रीजन सिंपल है, हमने सेल टाइप, वो सेल है ही नहीं। वायरसेस कौन से सेल होते हैं? सो तुम समझ सकते हो ना कि कुछ ऑर्गेनिजम्स है, अब ऑब्वियसली वायरसेस लिविंग है कि नॉन लिविंग, तो शरीर के बाहर जब तक है तब तक नॉन लिविंग, बट एक बार किसी होस्ट में घुस गए तब वो लिविंग बनते हैं, तो हमें लिविंग पकड़ना पड़ेगा, तो उसको कुछ ना कुछ तो क्लासिफाई करना पड़ेगा, जो करंट क्लासिफिकेशन में नहीं। इसलिए मैंने बोला कि आगे चलकर हो सकता है, शायद फिलहाल तो ये है, पर आगे चलकर और कोई बेटर क्लासिफिकेशन कोई साइंटिस्ट दे दे तो हम आगे चलकर शायद वो यूज करें, बट फिलहाल हम यही यूज करने वाले हैं, ठीक है। सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन। सो इट मेक्स आवर वर्क इजी, सॉर्टेड हो जाते हैं, कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स क्या क्या फीचर दिखाते हैं, ये हमें इजीली समझ में आता है। सो होप सो सबको ये क्लासिफिकेशन समझा है। और इसका अब हम अगले वीडियो लेक्चर से अगला जो लेक्चर होगा दैट विल बी एक्सक्लूसिवली ऑन किंगडम मोनेरा, तो हम एक एक किंगडम थोड़ा डिटेल में देखेंगे, उसमें जो भी छोटी मोटी चीजें वो हम लोग करने वाले हैं। सो होप सो गाइस सबको ये लेक्चर हेल्पफुल रहा होगा। गाइस सब्सक्राइब द चैनल, हिट द लाइक बटन, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। बाय बाय।